Good morning. I, Dr. Laphe, welcome you to our e-learning classes. Our topic of today's lecture is rules regarding transfer of property. We are repeating this topic due to the heavy demands from the students. Many of the students asked me the difficulties regarding this transfer of property. So, for your revision or for clearing your doubts, I am again taking the class on this topic. Okay, so very patient and very attentive while I am teaching this topic. Okay, so let us see what is the meaning of transfer of property. As I already told you in earlier classes that transfer of property means transfer of ownership in property to the buyer. Okay, so transfer of property means handling the goods to the buyer is not transfer of property. When the ownership in goods transferred from seller to the buyer, then we say that there is a transfer of property, or you may say the transfer of ownership. There are certain rules regarding transfer of property. For that purpose, we have to divide, or we have to classify the goods into two parts. What are these two parts? Specific or uncertain goods and uncertain or future goods. I already explained you the meaning of uncertain, or you may say the specific goods, and uncertain and future goods. But as I told you earlier, this is a revision class. I am again revising these terms. What is specific or uncertain goods? Specific goods means the goods which you can easily identify from the bulk of the goods. For example, if you want to purchase this pen, you go to the shop and say and ask the shopkeeper to give you this pen only. That means this is the uncertain goods and this is the specific goods. Why we call this as specific goods? Because you can very easily differentiate these goods from other types of pens. That's why this type of goods are known as specific or uncertain goods. And the second one is uncertain or future goods. Uncertain or future goods means which are not in deliverable state or which are not identified right now. That means they do not have its physical presence right now. ठीक है? जैसे कि अभी if you give order to some carpenter for making a table for you, that means the table is not present. That means the physical presence of this table is not today, but it will be made according to your description in future. And that's why this type of goods are called future goods or uncertain goods. Uncertain goods are those goods which are physically present but which are not separated from the bulk of goods. For example, if you want a sugar, that means let us take the example, you want 2 kg of sugar and the shopkeeper have a bag of 50 kg of sugar. He has to ascertain, or he has to separate 2 kg of sugar from the bag of 50 kg of sugar, and that's why those goods are called as uncertain goods. They will be uncertain when the shopkeeper separates that 2 kg of sugar from the 50 kg of sugar bag. Okay? फिर से बताती हूँ क्या होता है. अनसर्टेन गुड्स क्या होते हैं? फिजिकली जिसका प्रेजेंस है लेकिन जो अभी बाकी के गुड्स में मिले हुए हैं, ऐसे इसको हमें क्या करना है, वो मिले हुए गुड्स में से सेपरेट करना है. इसलिए जनरली जैसे फूड ग्रेन्स होते हैं, या फिर मैंने जैसे अभी आपको शुगर के बारे में बताया है, वो सैक में है, उसका एक बल्क में उनका प्रेजेंस है. समझ लीजिए आपको 5 kg व्हीट चाहिए है, तो 5 kg व्हीट चाहिए लेकिन 30 kg के बैग है, उसमें से वो शॉपकीपर को 5 kg के जो गुड्स है वो सेपरेट करने हैं. इसलिए ऐसे गुड्स को कहा जाता है अनसर्टेन गुड्स. और फ्यूचर गुड्स में यानी क्या होता है, जो अभी है ही नहीं, जो अभी बनने के हैं, आप उनको बताओगे कि इस तरह से आपको गुड्स चाहिए है और उस तरह से उनका मैन्युफैक्चरिंग होगा, या तो उसके ऑर्डर देके वो आपको डिलीवर किया जाएगा. ऐसे गुड्स को कहा जाते हैं फ्यूचर गुड्स. ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट आर द रूल्स रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन अ सर्टेन गुड्स.
असर्टेन गुड्स, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, क्या होता है असर्टेन गुड्स? जिनको आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो बाकी गुड्स से। इसके लिए अभी आपको फिर से कोई और स्टेप्स लेने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे रूल्स फॉर असर्टेनिंग इंटेंशन ऑफ पार्टीज। क्या होता है रूल्स रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन असर्टेन गुड्स? प्रॉपर्टी passes when the parties intend to pass. This means क्या होता है when the parties entering into a contract intends to pass the property in goods, then they can easily pass the property in goods from seller to the buyer. फिर से बताती हूँ क्या होता है। जैसे कि seller and buyer are the parties to the contract of sale of goods. जब उन दोनों का इंटेंशन है, क्या इंटेंशन है? बायर बोल रहा है कि मुझे वो प्रोडक्ट परचेस करना है और सेलर उसे वो सेल करने के लिए तैयार है। दैट मीन्स बोथ द पार्टीज आर इंटेंडिंग, द सेलर वांट्स टू सेल एंड द बायर वांट्स टू परचेस द गुड्स, देन वी से दैट प्रॉपर्टी पासेस व्हेन द पार्टीज इंटेंडेड टू पास। इसके लिए भी रूल्स है, रूल्स फॉर असर्टेनिंग इंटेंशन ऑफ पार्टीज where goods are in deliverable state। देखिए अभी क्या है, गुड्स है, मैं आपकी शॉप में आई हूँ और आपसे मैंने कहा कि ये पर्टिकुलर समझ लीजिए ये वाटर बॉटल है। मैंने आपको कहा कि आई वांट टू परचेज दिस वाटर बॉटल, ठीक है। ये वाटर बॉटल मुझे परचेस करनी है, आपके पास वो है, डिलीवरेबल स्टेट में है, तो आपने तुरंत मुझे क्या कर दिया है, वो पास कर दी है, यानी यू ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ दैट वाटर बॉटल टू मी। यानी डिलीवरेबल स्टेट में होने के बाद गुड्स तुरंत ही क्या हो जाते हैं, द ओनरशिप इन प्रॉपर्टी और द ओनरशिप इन गुड्स passes immediately to the buyer। अब immediately passes, it is not compulsory that the possession of the goods must be taken by the buyer। ये जरूरी नहीं है कि जब वो आप goods, that means you are passing the ownership of the goods, at the same time the buyer take the possession of the goods। ये जरूरी नहीं है, वो कह सकता है कि मैं बाद में आके आपसे गुड्स ले जाता हूँ, लेकिन as the ownership in goods passes to the buyer, the risk related with the goods will be beared by the buyer। समझ में है? जैसे एक एग्जांपल दे देती हूँ मैं आपको। मैं आपकी शॉप में आई हूँ, मैंने आपको कहा कि मुझे गुड्स चाहिए, मैंने ले लिए हैं। हाँ, और एक बात मैं यहाँ पे बता दूँ, ये भी जरूरी नहीं है कि मैंने आपको अभी पेमेंट करना है, ये भी जरूरी नहीं है कि आपने मुझे अभी वो गुड्स भी दे देने हैं। जरूरी क्या होता है कि आपने इंटेंशन है दोनों का प्रोडक्ट परचेस करने का, ठीक है, और आपने उस तरह से ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर भी की है। मैंने कहा कि मैंने ये परचेस किया है, मैंने आपको उसके लिए पैसे भी दे दिए हैं और कहा है कि एक गुड्स मेरा सर्वेंट आके आपसे कल लेके जाएगा, और अनफॉर्चुनेटली उसी दिन आपके शॉप में लगी है आग, और मैंने जो गुड्स परचेस किए थे वो आपकी यहाँ की जो फायर हुई थी उसमें वो पूरे के पूरे टोटली डिस्ट्रॉय हो गए। अब मैं आपको ये नहीं बोल सकती कि मेरे गुड्स आप मुझे दे दीजिए। क्यों नहीं बोल सकती? क्योंकि आई लूजेस द राइट टू रिकवर द गुड्स फ्रॉम यू बिकॉज यू हैव ऑलरेडी ट्रांसफर्ड द ओनरशिप इन गुड्स टू मी। क्योंकि ये अभी जो भी लॉस होगा दैट विल बी बेयर बाय मी ओनली, वो मुझे बेयर करना है, उसके लिए मैं सेलर को रिस्पॉन्सिबल हेल्ड नहीं कर सकती हूँ। एंड दैट इज द रूल्स, और दैट इज द रूल ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स, ठीक है। फिर सेकेंड क्या है, वेयर द गुड्स हैव टू बी पुट इनटू ए डिलीवरेबल स्टेट। अब ये डिलीवरेबल स्टेट में थे, यानी आप मुझे कह रहे थे कि आप अभी लेके जाइए, लेकिन मैंने ही कहा कि मैं कल लेके जाऊंगी। दूसरा एक है कि अभी वो डिलीवरेबल स्टेट में रखने हैं, डिलीवरेबल स्टेट में वो नहीं है। उसके लिए भी उन्होंने दो तरीके से उसे क्लासिफाई किया है। समथिंग इज डन बाय द सेलर टू पुट द गुड्स इनटू अ डिलीवरेबल स्टेट। एक तो ये हो सकता है आफ्टर पुटिंग द गुड्स इनटू अ डिलीवरेबल स्टेट the buyers informed thereof। Something is done by the seller to put the goods into a deliverable state। इसका मतलब ये होता है something is done by the seller, उससे जो कुछ करना था डिलीवरेबल स्टेट में लाने के लिए, हो सकता है उसे भी उसकी पैकेजिंग करनी है, हो सकता है कि उसे वो कंटेनर में फिल करना है। ऐसे जब कोई रीज़न की वजह से उसने वो डिलीवरेबल स्टेट में अभी गुड्स उसके नहीं है,
इसलिए उसके यानी पोजीशन अभी बायर नहीं ले पाया है, लेकिन जैसे वो डिलीवरेबल स्टेट में आ जाते हैं, आपने जो रिक्वायरमेंट थी गुड्स की उसे कहा है कि हाँ आपके जो गुड्स है वो भी डिलीवरेबल स्टेट में है, और इस तरह से आपने बायर को इन्फॉर्म भी किया है कि नाउ द गुड्स आर इन डिलीवरेबल स्टेट एंड यू कैन टेक द पोजीशन ऑफ गुड्स। दैट मीन्स क्या था पहले, एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट आपको कुछ तो भी करना था, यानी सेलर हैज टू परफॉर्म सम एक्ट ऑन द गुड्स, और वो होने के बाद उसने वो किया और बायर को इन्फॉर्म भी किया कि आपके गुड्स जो है वो डिलीवरेबल स्टेट में आ चुके हैं। नाउ इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बायर टू टेक द पोजीशन ऑफ गुड्स, एंड इफ समथिंग हैपन टू द गुड्स then the total responsibility lies with the buyer and not with the seller, because the seller already informed the buyer that the goods are in deliverable state. Okay, then third type of this is where the seller is bound to weigh, measure, taste or to do some act in order to a certain price. देखिए क्या होता है, कई बार जैसे कि मैंने कहा कि ये एक बैग कितने की है, तो आपने कहा कि ये है 500 रुपीज़ की। जो 500 रुपीज़ की बैग है उसमें समझ लीजिए कुछ 50 kgs जो है, एक एग्जांपल के लिए हम लोग फिर से लेते हैं, शुगर है 50 kg शुगर इज इन अ बैग ऑफ 500 रुपीज़। ठीक है, 500 रुपये की वो 50 kg शुगर हो रही है, लेकिन मैंने कहा कि मुझे सिर्फ 2 kg ही चाहिए है। अब 2 kg चाहिए है तो उसे वो सेपरेट भी करना है, और समझ लीजिए कि मैंने कहा कि नहीं मुझे 50 रुपए की चाहिए है। अब 50 रुपए की जितनी शुगर होगी उतना आपको वे करना जरूरी है, मुझे 500 रुपए की शुगर नहीं चाहिए है। तो ऐसे इसमें उसे क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, उसका मेजर करनी पड़ेगी, या फिर टू डू सम एक्ट इन ऑर्डर टू अ सर्टेन प्राइस। उसकी प्राइस असर्टेन करने के लिए आपको कुछ एक्ट करनी जब जरूरी होती है, तब ये गुड्स पासेस टू द बायर कब पास होते हैं, जब ये एक्ट जो है सेलर से परफॉर्म हो जाता है और सेलर इसके बारे में बायर को बताता है। ठीक है, देन एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स बाय बायर, सेल और रिटर्न बेसिस। जैसे कि देखिए many times the goods are sold to the buyer on the term if he desire or he likes that goods then he will purchase those goods। ऐसे सेल और रिटर्न बेसिस पे भी किए जाते हैं। आपने ऑनलाइन में अभी परचेस किया होगा तो देखा होगा कि आपने जो इसका ड्रेस मंगवाया है या जो भी प्रोडक्ट आपने ऑनलाइन मंगवाया है, अकॉर्डिंग टू यूर स्पेसिफिकेशन वो प्रोडक्ट आता है तो आप उसे रखते हैं, अदरवाइज आप उसे क्या करते हो, रिटर्न करते हो। ठीक है, लेकिन समझ लीजिए कि अकॉर्डिंग टू योर स्पेसिफिकेशन नहीं आया है और रिटर्न करने के लिए जो टाइम पीरियड दिया है वो एक्सपायर हो गया है। नाउ इट इज assumed by the seller that the buyer has kept the delivery of goods। ठीक है, नहीं तो within that period you have to inform the seller that the goods are rejected by the buyer, यानी goods buyer ने एक्सेप्ट नहीं किए हैं। लेकिन ऐसा भी अगर आपने किया हुआ है कि बायर ने क्या किया है, गुड्स को रख लिया और थर्ड पर्सन को उसे सेल किया है, तो ऐसे इसमें ये समझा जाता है द बायर हैज केप्ट द गुड्स, दैट मीन्स ही एक्सेप्टेड द गुड्स। और ऐसे इसमें अगर वो गुड्स को कुछ और डैमेजेस वगैरह भी होते हैं तो भी द रिस्क ऑफ बेयरिंग द लॉस रेस्ट विद द बायर एंड नॉट विद द सेलर। लेकिन एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स बाय द बायर जब तक के नहीं आती है, कब आनी जरूरी है, जब वो गुड्स सेल और रिटर्न बेसिस पे आपने सोल्ड किए हैं बायर को, और जब तक कि उसकी एक्सेप्टेंस नहीं आती है तब तक के टिल that time you cannot say that the ownership in goods passes to the buyer। समझ में आया है? तो ये क्या होता है, from this way you can identify whether the property in goods passes to the buyer or it is still is with the seller। क्या क्या देखा हमने, एक तो आपको उसे ये करना है, दो हिस्सों में हमने उसे डिवाइड किया है। एक पहला देखा स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स, और हमने दूसरा देखा है अनअसर्टेन और फ्यूचर गुड्स।
पहले हमने रूल्स देखे हैं असर्टेन और स्पेसिफिक रूल्स के। क्या क्या देखा है हमने उसमें? प्रॉपर्टी पासेस व्हेन द पार्टी इज इंटेंडेड टू पास, यानी जब उनकी इच्छा होती है तभी उन्होंने वो क्या किए गुड्स, और गुड्स भी कैसे डिलीवरेबल स्टेट में है और उन्होंने गुड्स को परचेस किया है या सेल किया है। हो सकता है उसकी डिलीवरी वो आज ले, हो सकता है उसका पेमेंट वो आज करे या फ्यूचर डेट में करे या उसका पोस्टपोन भी करे, लेकिन उन्होंने इंटेंड किया है to enter into a contract to purchase the goods. At that time only the ownership in goods passes to the buyer. फिर क्या देखा हमने? Rules for ascertaining intention of parties. Where goods are in deliverable state, जैसे डिलीवरेबल स्टेट में है तो तुरंत क्या हो जाती है, उसकी डिलीवरी पास हो जाती है और बायर को समझा जाता है इज बेयरिंग द रिस्क ऑफ लॉस। ठीक है। फिर दूसरा क्या है, उसमें भी उन्होंने कहा है समथिंग इज डन बाय द सेलर टू पुट द गुड्स इनटू अ डिलीवरेबल स्टेट। अभी वो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, इसके लिए सेलर को कुछ एक्ट परफॉर्म करनी है। सेलर ने वो एक्ट परफॉर्म कर ली है और उस तरह से इन्फॉर्म किया है बायर को कि जो करना था वो कर लिया है, अभी आप उसके पोजीशन ले सकते हो। तो जब भी बायर को इन्फॉर्म हो जाता है तभी ये समझा जाता है तो ओनरशिप इन गुड्स पासेस टू द बायर। फिर क्या है, where the seller is bound to weigh major test or to do some act in order to ascertain price. प्राइस ascertain करनी है। अभी प्राइस ascertain करने के लिए उसे ये जो है वो परफॉर्म करने पड़ रहे हैं, और जैसे ये परफॉर्म हो जाता है और सेलर बायर को बता देता है, तुरंत ये होने के बाद ये समझा जाता है कि बायर ने ओनरशिप ले ली है। देन एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स बाय बायर। जब तक के गुड्स का एक्सेप्टेंस बायर नहीं देता है तब तक के यू कैन नॉट अज्यूम दैट द प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर टू द बायर। दैट मीन्स ओनरशिप ऑफ द गुड्स ट्रांसफर टू द बायर, and these are the rules relating to transfer of property in a certain goods. Now let us see transfer of property for future goods. Future goods के लिए when you can assume that the property in goods transfer to the buyer. सबसे पहले ascertainment of goods। पहले तो आपको ascertain करना है goods को। ascertain करना है यानी क्या है, पहले उसको deliverable state में लाना है। जब तक कि आप उसको उस state में नहीं लाते हैं, you cannot say that you have transferred the property in goods to the buyer। आज आपके पास गुड्स ही नहीं है, अब जब गुड्स ही नहीं है आपके पास, तो how can you say that the ownership is transferred to the buyer? क्योंकि जिसका प्रेजेंस नहीं है उसकी आप ट्रांसफर ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर नहीं कर सकते। दूसरा है अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स से होता है कि जब तक के, जैसे कि मैंने कहा कि एक एग्जांपल ले लीजिए फिर से, आपने क्या किया हुआ है कि कुछ गुड्स जो है वो आपने रेलवे के थ्रू बायर को सेंड किए हैं, लेकिन सिर्फ एक सिंगल बायर नहीं है, आपके बहुत सारे बायर है और बल्क में आपने वो गुड्स, जैसे कि समझ लीजिए कुछ आपने कार्टन्स जो है वो भेजे हुए हैं, 20 कार्टन्स भेजे हुए हैं और आपके समझ लीजिए 10 बायर है और हर एक ने आपसे 2-2 कार्टन्स के लिए बोला हुआ है, लेकिन आपने उसके ऊपर कोई नाम स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है। आपने सिर्फ रेलवे को ये इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि ऐसे ऐसे लोग आएंगे, उनको 2-2 जो पार्सल है वो डिलीवर करना है। दैट मीन्स यू हैव नॉट असर्टेन द गुड्स टू अ पर्टिकुलर बायर। ये जब तक कि आप दैट मीन्स यू आर नॉट अप्रोप्रिएटिंग द गुड्स टू द पर्टिकुलर बायर। यू हैव असर्टेन द गुड्स बट यू हैव नॉट अप्रोप्रिएटेड द गुड्स। अप्रोप्रिएटेड मीन्स पर्टिकुलरली उस पर्सन के नाम पे वो गुड्स को देना है। तो ऐसे इसमें अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स नहीं हुआ है, एंड ड्यू टू सम रीजंस if the goods are not delivered to the buyer, then the buyer has a right to sue the seller. That means he can recover all his losses from the seller. क्यों? क्योंकि अभी ट्रांसफर प्रॉपर्टी इन गुड्स आर नॉट ट्रांसफर टू द बायर। क्यों नहीं हुई है? आपने तो बायर के नाम से भेजी है, लेकिन आपने उसे अप्रोप्रिएट नहीं किया था बायर के नाम से, इसलिए यानी पर्टिकुलरली वो बायर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था कि कौन से 2 मेरे पार्सल है, इसलिए द बायर हैज अ राइट टू स्यू द सेलर। फिर डिलीवरी टू कैरियर। जैसे कैरियर के लिए आपने डिलीवर कर दिए हैं गुड्स डिलीवर कर दिए हैं, और जब तक के बायर के हाथ में वो डिलीवरी नहीं पहुंचती है या उसका एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ बायर उसे नहीं एक्सेप्ट करता है, तब तक के यू कैन नॉट से दैट
द प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर टू द बायर। तो ये जरूरी होता है, अगर अनअसर्टेन गुड्स है या तो फ्यूचर गुड्स है, तो ये 3 कंडीशंस जब फुलफिल हो जाती है, देन ओनली इट इज सेड दैट द ओनरशिप इन गुड्स passes to the buyer. Okay, thank you.